Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Welcome to the learning session through Virtual Training Center of Municipal Corporation of Greater Mumbai. Dear students, from this session, we'll start preparation for scholarship examination. So let's begin our session. A scholarship exam is not like a regular school-based test. It is a specially designed piece of assessment to determine a student's level of ability and intellectual prowess. On the basis of guidelines provided by Maharashtra State Council of Examination, you can prepare for such exams and give yourself the best chance for success. Today's topic is vocabulary, which is unit number 1 for standard 8 English scholarship. In our last session of English scholarship exam for standard 8, we have already seen in detail the syllabus for your exam. We have also seen the exam pattern. Let us revise the syllabus. Let's see what are the units. We have already seen this. Just a quick recap of that. Unit number 1, vocabulary. Second is word puzzles. Third is language study. Fourth unit is grammar. Fifth is creative thinking. Sixth is reading skills and seventh is miscellaneous. और आज हम करेंगे vocabulary. And in this session we'll practice some sample questions from unit number 1, vocabulary. What is the meaning of vocabulary? वोकैबलरी के लिए हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़ख़ीरे अल्फाज. Vocabulary means knowing more and more words and using them in day-to-day life in school and outside the school. ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज को जानना और उन अल्फाज को रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुफ्तगू के दौरान इस्तेमाल करना, चाहे आप स्कूल में हों, स्कूल से बाहर हों, घर में हों. तो जितने ज़्यादा अल्फाज आपके पास होंगे आप उनका इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकेंगे. Certainly, vocabulary plays an important role in teaching and learning process. ज़ख़ीरे अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है. जिस ज़बान में आप गुफ्तगू करना चाहते हैं उस ज़बान के अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास होगा तो उसे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोज़मर्रा बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं. And learning the words with context and use of dictionary helps to enrich our vocabulary. अब डिक्शनरी किसे कहते हैं आपको पता है? ये देखिए आप, ये है डिक्शनरी जिसमें मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं और उन अल्फाज के मीनिंग्स दिए हुए होते हैं. तो बेसिकली डिक्शनरी इज़ अ बुक दैट लिस्ट्स in alphabetical order and explain the words of a language or gives equivalent words in another language.
तो डिक्शनरी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा ज़ख़ीरे अल्फाज वसी हो सके, हमारी वोकैबुलरी जो है वो एनरिच हो सके। टुडे we'll practice sample questions from unit number 1 vocabulary. Subunit is 1.1 writing words using given clues. अभी आप देखेंगे कुछ क्लूज दिए हुए होंगे और उनकी मदद से आपको अल्फाज पहचानने हैं। Let's see the first question. But before the question, there is an instruction given for you. और वो इंस्ट्रक्शन, वो हिदायत क्या है? Choose the correct alternative from the given picture. आपको सही अल्टरनेटिव चुनना है, सही मुतबादिल चुनना है फ्रॉम द गिवन पिक्चर। इसका मतलब जो सवाल है उसमें एक पिक्चर दिया हुआ है और उस पिक्चर को देखते हुए आपको सही अल्टरनेटिव का इंतखाब करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी पिक्चर दी हुई है और अल्टरनेटिव्स क्या हैं। The picture shows number 1 summer season, number 2 rainy season, number 3 winter season, number 4 autumn season। तो आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बच्चे ने छतरी हाथ में पकड़ी हुई है, बारिश हो रही है, तो आपने पहचान लिया होगा। Which season is this? Is it a summer season? गर्मियों का मौसम है? नहीं। Is it a rainy season? Yes, of course it's a rainy season. और नंबर 3 और 4 अल्टरनेटिव जो हैं वो आप देख लीजिए। विंटर सीजन यानी मौसम सरमा तो नहीं है ये, ऑटम सीजन भी नहीं है, खिज़ां का मौसम भी नहीं है जब पत्ते झड़ते हैं। तो अल्टरनेटिव नंबर 2 रेनी सीजन इज द राइट आंसर। और कैसे पता चला हमें कि ये सही जवाब है? तस्वीर देखकर। आप तस्वीर में देख रहे हैं बारिश हो रही है, बादल नजर आ रहे हैं, बच्चे के हाथ में छतरी है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपकी जो आंसर शीट होगी उसमें इस तरह अल्टरनेटिव्स के नंबर लिखे होंगे और सही नंबर पर आपको इस तरह डार्क सर्कल बनाना है। तो इस सवाल में ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर 2 क्या है? रेनी सीजन, बारिश का मौसम। Second question is a girl is gazing through dash. तस्वीर की मदद से आपको पहचानना है कि इस लड़की के पास ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से वो गौर से कुछ देख रही है। गेजिंग गौर से देखना, टू स्टेयर भी हम कह सकते हैं। इज इट अ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, हॉरोस्कोप और बायोस्कोप? व्हाट इज माइक्रोस्कोप? ये देखिए माइक्रोस्कोप की तस्वीर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई। खुदबीन जिसे हम कहते हैं। टेलीस्कोप, टेली का मतलब होता है दूर और स्कोप टू लुक। So telescope is an optical instrument using lenses, curved mirrors or combination of both to observe distant objects or various devices used to observe distant objects.
ये तो है टेलीस्कोप और देखें लड़की के हाथ में टेलीस्कोप है। थर्ड हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप जो है ये दरअसल एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और डायग्राम होता है जिसमें सूरज, चांद और दीगर प्लैनेट्स की पोजीशन बताई जाती हैं और इसकी मदद से वो फ्यूचर जो है उस प्रेडिक्ट करते हैं। अक्सर ज्योतिषी जो हैं वो हॉरोस्कोप की मदद से फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और बायोस्कोप, ये है बायोस्कोप। तो इसको देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें से सॉन्ग्स जो हैं वो सुनाई देते हैं और जो आगे जो आप देख रहे हैं सर्कल दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी मदद से अंदर कुछ पिक्चर्स दिखाई देती हैं। तो ये है बायोस्कोप। तो अब अ गर्ल इज गेजिंग थ्रू, अ गर्ल इज गेजिंग थ्रू टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर 2 is the right answer, क्योंकि telescope is the correct option because telescope is used for stargazing। तो हम सेकेंड नंबर पर डार्क सर्कल करें। Now let's see the third question। इंस्ट्रक्शंस आपको याद हैं। Choose the correct alternatives from the given sentence। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं a boy is doing something। तो क्या कर रहा है, आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। 1 picking up flowers, 2 sowing the seeds, 3 watering the plant, 4 observing the leaves। तो पहचाना आपने क्या कर रहा है ये लड़का। पिकिंग अप फ्लावर्स, फूल तोड़ रहा है, नहीं। सोइंग द सीड्स, बीज बो रहा है, नॉट एट ऑल। थर्ड ऑप्शन इज वाटरिंग द प्लांट। देख रहे हैं आप, पानी दे रहा है पौधों को, तस्वीर से साफ दिखाई दे रहा है। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम, ऑब्जर्विंग द लीव्स। क्या पत्तों का मुशाहिदा कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। सो ऑप्शन नंबर 3 is correct because it is clearly seen in the picture and rest of the 3 are not related to the picture। So हम आंसर शीट में इस सवाल के जवाब में नंबर 3 के दायरे पर डार्क सर्कल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसमें कोई तस्वीर नहीं है, देयर इज नो पिक्चर इन दिस क्वेश्चन। तो अब आपको पता चल गया अच्छी तरह कि अगर तस्वीर दी हुई हो तो तस्वीर को देखते हुए कैसे आपको सही ऑप्शन चुनना है, करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। इस सवाल में कोई तस्वीर नहीं है, मगर आप देख रहे हैं आपको हिंट दिया हुआ है। इफ इट इज कप एंड सॉसर देन व्हाट इज नाइफ एंड। अगर कप एंड सॉसर हम कहते हैं तो फिर नाइफ यानी छुरी और क्या? नंबर 1 स्पेड, नंबर 2 बाउल, नंबर 3 लैडर, नंबर 4 फोक। स्पेड जो किसान इस्तेमाल करते हैं ज़मीन से मिट्टी हटाने के लिए, तो नाइफ के साथ स्पेड तो इस्तेमाल नहीं होती। खाना खाते वक्त अक्सर लोग छुरी के साथ किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? स्पेड का तो नहीं करते। बाउल, प्याले का इस्तेमाल तो होता है मगर हमेशा नाइफ के साथ तो नहीं होता।
लैडर। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, लैडर। डू यू नो द मीनिंग ऑफ लैडर? इट मीन्स सीढ़ी, जो सीढ़ी हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड लैडर। आपने खेल खेला होगा स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी का खेल। तो लैडर एंड नाइफ का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। नंबर 4 देखिए, फोर्थ ऑप्शन इज फोक, FORK, फोक। तो फोक का मतलब पता है आपको? फोक यानी कांटा, जिससे हम कोई चीज़ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोक, फ्रूट्स वगैरह जब आप खाते हैं। तो नाइफ एंड फोक, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। तो जिस तरह जैसे कप एंड सॉसर, देन नाइफ के साथ फोक, FORK। Generally people use fork with knife while eating. अक्सर लोग खाना खाते वक्त छुरी के साथ कांटे का इस्तेमाल करते हैं। People use knife with fork. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हम आंसर शीट में हम नंबर 4 पर डार्क सर्किल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, My mother dash delicious cake. ये fill in the blank है। My mother, आपको यहाँ इस जगह को पुर करना है। You have to fill this blank. Delicious cake, तो केक है। मेरी अम्मी मज़ेदार केक क्या करती हैं? केक कैसे बनता है ये आप सबको पता है। ऑप्शन देखिए, नंबर 1 बेक्स, नंबर 2 बॉइल्स, नंबर 3 कुक्स एंड नंबर 4 फ्राइज। देखें, ये यूनिट वोकैबुलरी की है, ज़ख़ीरे अल्फाज की। तो मुख्तलिफ अमल के लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं। कुकिंग में भी बेक, ओवन में बेक किया जाता है कुछ चीज़ों को। क्या केक उसमें शामिल है? यस, केक को बेक किया जाता है। मगर दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नंबर 2 बॉइल्स, बॉइल यानी उबालना। केक को उबालकर बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। नंबर 3 कुक्स, लेकिन पकाना से मुराद उसे बाकायदा जिस तरह हम सब्जी पकाते हैं ऐसे नहीं पकाया जाता। नंबर 4 इज फ्राइज, फ्राई करना, तलना। तो केक को फ्राई भी नहीं किया जाता, केक को बेक करते हैं। तो माय मदर बेक्स डिलिशियस केक। एज कुकिंग, boiling and frying are not related with preparation of making cake, baking is must for making a cake. So option number 1 is the right answer. आंसर शीट पर हम ऑप्शन नंबर 1 पर डार्क सर्किल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ चिलीज आर हॉट देन एप्पल्स आर। तो यहाँ पर अब टेस्ट की बात हो रही है। तो मिर्चियों का टेस्ट आपको पता है, तीखी होती हैं। तो इफ चिलीज आर हॉट देन एप्पल्स आर। ऑप्शन नंबर 1 इज रेड, number 2 juicy, number 3 sweet and number 4 sour. तो अब यहाँ देखें, चिली और एप्पल्स के कलर की बात नहीं की जा रही है। सवाल में ही आपके लिए हिंट छुपा हुआ है।
इफ चिलीज आर हॉट, ये नहीं कहा कि इफ चिलीज आर ग्रीन, चिलीज के कलर की बात नहीं बताई यहाँ पर। मिर्चियाँ ग्रीन होती हैं, रेड भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है टेस्ट की। इफ चिलीज आर हॉट देन एप्पल्स आर, ऑप्शन नंबर 1 इज रेड। ठीक है, एप्पल्स रेड होते हैं, मगर सवाल में आपके लिए जो हिंट है या जो क्लू है आपको उसको फॉलो करना है। तो चिलीज आर हॉट देन एप्पल्स आर रेड नहीं कहेंगे, हालांकि एप्पल्स रेड होते हैं, मगर यहाँ चिलीज के टेस्ट की बात हो रही है, तो हम भी एप्पल्स का टेस्ट कैसे होता है वो बताएंगे। तो एप्पल्स आर रेड, ओके रेड होते हैं, मगर रेड इज नॉट अ टेस्ट, रेड तो कलर है। जूसी, नंबर 3 स्वीट एंड नंबर 4 सावर। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि खट्टा टेस्ट तो नहीं होता एप्पल्स का। ऑप्शन नंबर 4 जो है सावर, वो ज़्यादातर हमें किन चीज़ों के टेस्ट में मिलता है? लेमन, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, टैमरिंड, मगर एप्पल्स जो हैं वो तो स्वीट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इफ चिलीज आर हॉट then apples are sweet। आंसर शीट में हम नंबर 3 पर डार्क सर्कल करेंगे। अब ये एक मुख्तलिफ किस्म का सवाल है, मगर आप लोगों के लिए ये नया बिल्कुल नहीं है। फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑड मैन आउट के सवालात आप छोटी जमातों से करते आए हैं, तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें मीनिंग्स के एतबार से क्या चीज़ मुख्तलिफ है जिसे हम अलग करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं, एक बार हिदायत पढ़ लेते हैं हम। फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या हैं? नंबर 1 इज फ्लैश, नंबर 2 ट्विंकल, नंबर 3 ग्लिटर एंड नंबर 4 बैंग। तो फ्लैश लाइट होती है, आपने देखा होगा कैमरे में होती है। नंबर 2 ट्विंकल, स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं। नंबर 3 ग्लिटर यानी चमक, एंड नंबर 4 बैंग, एक जोर से जो आवाज होती है, बैंग करना। तो पहले के 3 ऑप्शंस जो हैं उनका ताल्लुक रोशनी से है, लाइट से है, फ्लैश, ट्विंकल, ग्लिटर, मगर चौथा ऑप्शन जो है दैट इज बैंग, इसका ताल्लुक आवाज से है। सो यहाँ पर ऑडमैन क्या है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर 4 बैंग। बैंग का मतलब है अ सडन लाउड शार्प नॉइज, तो आवाज से इसका ताल्लुक है। और पहले के जो 3 ऑप्शंस हैं, द फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर रिलेटेड टू लाइट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आंसर शीट पर हम 4 नंबर पर डार्क सर्कल करेंगे। ओके, आगे बढ़ें हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स सी व्हाट इट इज। फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आपको ऑप्शंस में से जो अलग चीज़ है, जो मुख्तलिफ है, उसे मुंतखब करना है। तो फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं।
Number 1 is novels. Number 2 short stories. Number 3 concert. And number 4 poetry. तो अब यहाँ आप देख सकते हैं नॉवेल्स आप जानते हैं अदब की एक सिन्फ है, नसरी अदब की एक सिन्फ है, तवील कहानी पेश की जाती है इसमें। सेकेंड है शॉर्ट स्टोरीज, जिन्हें हम उर्दू में मुख्तसर अफसाना या मुख्तसर कहानी कहते हैं। शॉर्ट स्टोरीज, मुख्तसर कहानियाँ। नंबर 3 कॉन्सर्ट। ये लफ्ज़ सुना है कभी आपने, कॉन्सर्ट? कॉन्सर्ट इज़ अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस गिवन इन पब्लिक, typically by several performers or of several compositions। तो कॉन्सर्ट क्या है? ये एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है जो आवाम के सामने पेश किया जाता है और कई सारे परफॉर्मर्स होते हैं इसमें, बहुत सारे परफॉर्मर्स होते हैं। तो नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी जाती हैं, असनाफ़ अदब हैं, और कॉन्सर्ट जो है ये एक परफॉर्मेंस है, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होता है जिसे लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है पोएट्री। पोएट्री भी अदब की एक सिन्फ है, जैसे नस्र वैसे नज़्म। तो नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री, क्या सिमिलैरिटी है इनमें? ये लिटरेचर की, अदब की मुख्तलिफ असनाफ़ हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। और कॉन्सर्ट जो है वो एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है जिसे हम देखते हैं, लोग देखने जाते हैं ऑडिटोरियम में, हॉल में। तो यहाँ पर ऑडमैन क्या हुआ जिसे हमें अलहदा करना है, चुनना है? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, इट्स ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ कॉन्सर्ट। तो हम आंसर शीट में नंबर 3 पे डार्क सर्कल करेंगे। This is the end of part 1 for unit number 1, vocabulary. So children, that's it for today. आज हमने क्या किया? यूनिट नंबर 1 में सब यूनिट 1.1 के कुछ सवालात की मश्क की। तो आज हम यहीं रुकते हैं। इसी तरह हम सिलेबस में शामिल मुख्तलिफ यूनिट्स और उनके सब यूनिट्स के सैम्पल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही।